لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قال اللہ تعالی خصوصا فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العال القادر العظیم اللہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا حضرت قبلہ علامہ پیر طریقت مولانا مفتی سید حبوب بخش شاہ صاحب دعوت عالیہ اور ان کے رفقا کو جنہوں نے اس محترم مکرم مقدس محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، اور ہم اور اسٹیج پر جلوہ گر کے سارے علماء اور معززین اور سامنے موجود آپ اور میں، ہم جتنے بھی ہیں ان کی کوشش کا میں سے جمع ہوئے، اور یقیناً اگر یہ پہل نہ کرتے تو حضور کی محفل بھی اس طرح انعقاد پذیر نہ ہوتی. تو اللہ پاک ان کی سعی کو، کوشش کو، ذکر مصطفیٰ کی اس محفل کے انعقاد کو ان کے حق میں، ہمارے حق میں، اسٹیج پر موجود سامنے موجود ہر ایک کے حق میں اللہ پاک اسے قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے لیے توشہ آفت بنائے، ذریعہ نجات بنائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، حضور سید عالم ہے، رحمت دو عالم ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی قرآن پاک نے لیا تو کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری جگہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور اس کا تو شان نزول آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے. کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور کو ابا کہنا شروع کیا اور سرکار نے بھی ان کو بیٹا کہنا شروع کیا. یہ حضور کے ان صحابہ میں غلام تھے، آزاد ہوئے، حضور کی بارگاہ میں رہے، آقا علیہ السلام کی غلامی میں رہے. حضور نے پھر ان کا نکاح کروایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابا کہتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح ہوا، نئی نبی طلاق ہو گئی. سیدہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے حضور، اور آ کر میرے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں زید سے بہتر رشتہ عطا فرمائے. حدیث سے تو بیوی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں روتی بھی تھی کہ زید سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کے محبوب کو اپنا ابا کہیں اور حضور ان کو اپنا بیٹا کہیں. لیکن پھر قرآن نازل ہو گیا اور حضرت زید اللہ کے محبوب کے صحابہ میں وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذاتی نام قرآن میں موجود ہے. اللہ رب العالمین نے حکم فرما دیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زید کی متعلقہ سے نکاح کرنے. آقا علیہ السلام نے نکاح کر لیا. حضور کا نکاح کرنا تھا، وہ منافقین اور حضور کا بغض رکھنے والے ورورہ مچ گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اپنے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر دیا. تو قرآن نازل ہو گیا اور تمام مفسرین نے لکھا نکاح میں حکمت بھی یہ تھی کہ رب یہ بتانا چاہتا تھا منہ بولے رشتوں کی رب کے ہاں وہ حیثیت نہیں. ہاں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان کی اپنی حیثیت ہے. رضائی کو بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے. منہ بولا بیٹی، بیٹی کی اپنی حیثیت ہے. ورثہ وہی ہیں جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے، محرم بھی وہی ہیں جن کو اللہ نے محرم بنایا ہے. تو یہ جب کیا ہوا تو رب نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مفہومی معنی یہ ہے کہ رب نے فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی مرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ابا نہ کہے. تم میں سے میرے مصطفیٰ کسی کے ابا نہیں ہیں. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ثبت فرمانے والے ہیں. اللہ کے حبیب خاتم النبیین ہیں. تو یہ اللہ کے محبوب ہیں، حضور سید عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
अल्लाह ने इनका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोते की पैदाइश होने वाली थी, हुजूर जलवागर होने वाले थे, तो मुफस्सरीन ने लिखा कि ये अल्लाह ही था, अल्लाह पाक ने ही उनके दिल में अलका किया कि वो थे कि बच्चे का नाम क्या रखें। अल्लाह ने ये अलका किया, जो रब ने रखा था नाम, इनका नाम मोहम्मद रखा जाए सल्लल्लाहु। उनके दिल में आया, मोहम्मद नाम रख लिया। और मोहम्मद ऐसा नाम है, मुफस्सरीन ने कहा कि ना ये पहले अंबिया और रसूल में किसी का था, न किसी और इंसान का था। हालांकि अब्दुल्ला नाम हुजूर के कई सहाबा के थे, हुजूर से पहले भी मौजूद थे। अब जैसे फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा भी हैं, और सैयदना अली की वालिदा का नाम भी फातिमा है। फिर आका इस्लाम की विलादत के वक्त जो दाइयां दो खवातीन मौजूद थी, हजरत बर्रा, दूसरी हजरत फातिमा थी, उनका नाम भी हजरत फातिमा था। और मुझे ज़हन में इस वक्त मुगलता है, आका इस्लाम की नानी जान है या दादी जान है, उनका नाम भी फातिमा है। तो ऐसे और भी बाबरकत नाम है जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन मोहम्मद वो नाम है कि अल्लाह के महबूब से पहले किसी का नहीं था। और ये हुजूर का नाम रखा, तो इसका माना क्या है? माना इसका ये है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, यूं समझिए जिसकी तारीफ हमेशा होती ही रहे। मुस्तफा वो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा फरमाते हैं, मैंने बड़े बड़े सिका उलमा से सुना, एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह का जिक्र खत्म हो जाएगा, रसूलुल्लाह का जिक्र बाकी रहेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह हमेशा है, हमेशा रहेगा। बाकी हर एक पर मौत का कानून तारी होगा, फरिश्ते भी, मलकुल मौत भी, और सब के सब एक वक्त ऐसा आने वाला है, हर एक पर कानून मौत तारी हो जाएगा। और फिर कुरान ने उसका जिक्र भी किया, रब फरमाएगा कि बताओ ये मुल्क किसका है, लेकिन मुल्कुल यौम, आज के दिन मुल्क किसका है, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, अल्लाह अकेला होगा। रब खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये मुल्क तो अल्लाह वाहिद क़हार का है, वही मालिक है। लेकिन क्योंकि अल्लाह महबूब पर रहमतें भेजता है, महबूब का जिक्र करता है, लिहाजा रब भी बाकी है, जिक्र मुस्तफा भी बाकी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाम है कि जब मुशरिकीन मक्का जो थे, हुजूर के मूजी थे, वो लफ्ज मोहम्मद कहकर जब कोई तबर्रा बकवास करने लगते, तो खुद उनके लोग कहते, बड़े फसीह लिसान थे, कि कुछ शर्म करो यार, मोहम्मद भी कहते हो और तकदीब भी करते हो। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया माअज़ल्लाह, मुज़म्मम उन्होंने नाम रख दिया, मुज़म्मत किया हुआ कि मुज़म्मम यूं कहता है मुज़म्मम। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ सहाबा से इसको रिवायत किया कि आका इस्लाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे मुशरिकीन मक्का की बदज़बानी से भी अल्लाह ने मुझे महफूज रखा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब वो कैसे? वो तो हर वक्त बकवास करते हैं। आका इस्लाम ने फरमाया जिससे बागों के वो मुज़म्मम को जो कहते हैं कहते रहे, मैं तो मोहम्मद हूं। वो तो किसी मुज़म्मम को कहते हैं, अल्लाह ने मुझे उनके ज़ियावा गोई से भी महफूज रखा है। वो किसी मुज़म्मम की मुज़म्मत करते हैं, मैं तो मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बनाया है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नाम है, मुफस्सरीन ने इस पर बहुत कलाम किया। हुजूर काज़मी अलैहि रहमत फरमाते थे, एक दिन मैं लफ्ज़ मोहम्मद पर गुफ्तगू कर रहा था, लाहौर में खिताब कर रहा था, और ये हजरत से मैंने एक से ज्यादा मरतबा सुनी। हजरत ने फरमाया, अल्लामा इकबाल स्टेज पर बैठे थे, सदारत उनकी, तो कहते जब मैंने गुफ्तगू जारी की हुजूर सैयद आलम के लफ्ज़ मोहम्मद पर कि तारीफ किसको कहते हैं और हुजूर की तारीफ का मकाम क्या है, तो जब मैंने ये गुफ्तगू की, आंख निकलती है, तकलीफ में होता है, मैंने स्टेज की तरफ देखा तो अल्लामा इकबाल की शदीद ज़ारो कतार रोते रोते हिचकी बनी। जब खिताब खत्म हुआ तो हजरत फरमाते, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह मुझसे मिले और मुझे कहने लगे, कादरी साहब अल्लाह आपको बहुत बड़ा आलिम बनाया। हुजूर तो अपने मज़ार में जलवागर है, आज भी जो मर रहा है अल्लाह के महबूब इस दुनिया में जलवा करते, उस वक्त में जो दुनिया से जा रहा था रसूलुल्लाह का रुख ज़ेबा तो उनको भी दिखाया जा रहा था। फिर हुजूर दुनिया में थे तो कब्र में हुजूर ने तो उस वक्त ऐलान फरमाया कि हर मोमिन मुसलमान नहीं, हर मुसलमान मुनाफिक काफिर से सवाल होगा, अल्लाह के महबूब इनके बारे में क्या कहता था। अब फिर हुजूर सैयद आलम सल्लम इस दुनिया में जलवा कर हैं, फिर भी कब्र में हर एक को नजर आ रहे हैं। हुजूर अपने रोज़ा मुबारक में जलवा कर हैं, फिर भी हर एक को नजर आ रहे हैं। और अल्लाह के हबीब हैं, चाहे तो दुनिया में भी जिसको चाहे दीदार करा दें, ये उनका करम है, उनकी रहमत है, चाहे तो करा दें। लेकिन ये याद रखें कि हजरत सैयदना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि एक दिन वो कोई पढ़ा रहे थे, जामी उनकी किताब ही पढ़ा रहे थे, तो हजरत जामी भी आकर वहां बैठ गए, तो उनकी वो कोई किताब पढ़ा रहे थे मौलाना,
تو وہ एक उन्होंने माना किया। तो मौलाना चेहरे पर वो हजरत जामिया हुजूर के बहुत बड़े आशिक हैं। तो उलमा ने लिखा, और ये फैज साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह से ये वाकया मैंने कई बार सुना कि वो चेहरे को उन्होंने लपेटा हुआ है, मुंडासा जिसे हम कहते हैं अपनी जुबान में मारा हुआ है, बैठे हैं और कहने लगे वो। उन्होंने जाना कि ये, उन्होंने और माना किया और माना किया और माना किया, आप उन्होंने करते रहे। उसने फिर रुका उस्ताद, उसने कहा हुजूर या तो आप खुद जामी हैं या आप उनके पास पढ़े, अब आप बता दें इसका माना क्या है। तो आपने कहा फकीर ही जामी है, जो आप जिस हवाले से आपने लिखा था आपने उसे बताया। तो उसने कहा हुजूर अपने चेहरे की भी ज़ियारत करा दें, आपने कपड़ा डाला हुआ है, तो आपने वो कपड़ा खोला अपने चेहरे से, तो आपके रुखसार इतने गल चुके थे कि अंदर हड्डियां नजर आती। किस कैसे गल गए? रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रोते हुए। ये वो हैं जिनके लिए गवर्नर मदीना का हुक्म हुआ कि ये आ रहे हैं, इनको मदीना नहीं आने देना, मेरे रोजा पर नहीं आने देना, रास्ते से वापस भेज दिया जाता। हाँ, एक दिन फिर एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, आप मुख्तलिफ मीलों से, कभी बक्से में बंद होकर, कभी किसी और शक्ल में, कभी चरवाहा बनकर, और वो फिर हुक्म होता है इस तरह आ रहे हैं, इनको रोका जाए। तो एक दिन फिर हुजूर ने ज़ियारत कराई, तो गवर्नर ने पूछा अल्लाह के हबीब इनको क्यों रोका जा रहा है? तो उलमा ने लिखा है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा इतना बड़ा आशिक है, यहाँ आएगा, ये तड़पेगा, रोएगा, और मैं मुस्तफा फिर इसके लिए अपने हाथ वाह करूंगा, और मैं फिर वो बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह के महबूब का करम इतना है, इनकी आगे बर्दाश्त नहीं है। फरमाया फिर उससे ये वादा ले लो कि अगर आना चाहते हो तो मेरे रोजा अक़दस पर रोना नहीं है, वरना हुजूर ने फरमाया मैं खुद उसके लिए दिलासे के लिए हुजूर ने फरमाया मज़ार अक़दस से भी बाहर जलवागर हो जाऊं। तो फिर उनसे ये वादा दिया गया, और हजरत जामी जब वहां पहुंचे ना, तो ऐसे लम्हा भर रुके, और चूंकि वादा किया था हुजूर के पैगाम पर, फिर वहां से दौड़े और रोज़ा पाक से दूर जाकर गिरे और बेहोश हुए, और फिर उठे और रोना शुरू कर दिया। इतना हुजूर से मोहब्बत करते थे। तो उसने कहा हुजूर ये आपने क्या हाल किया है? तो आपने फरमाया अभी भी मेरी मोहब्बत मुकम्मल नहीं। तो हजरत किबला गौसी साहब फरमाते होते हैं अगर हुजूर का दीदार इतना आसान होता तो जामी अपनी गाल गला लेते। याद रखें, आज जिसको देखे वो कहता मैंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। बहरहाल वो अपना आप जिम्मेदार है। ये याद रखें कि अल्लाह के महबूब की ज़ियारत इतनी आसान नहीं है। हदीस मुबारका में है जब हजरत अमीर उमर को ये खबर मिली ना कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बहुत से सहाबा भी मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद मुझे फिर नहीं देखेंगे, तो हजरत अमीर उमर सैयद उम्मुल मोमिनीन के पास आए, क्या हुजूर ने ऐसा फरमाया? फरमाया मैं भी उनमें शामिल हूँ जिन हुजूर की ज़ियारत फिर नहीं करेंगे। तो हजरत सैयद उमर ने फरमाया उमर तुम्हें इस्तिस्ना है, यानी तुमसे हुजूर मिलेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं जिन सहाबा को इस्तिस्ना है, हुजूर फरमाएं कि मेरे अक्सर सहाबा भी नहीं देख पाएंगे, तो बाकी ये उनका करम है, जिसको चाहे दीदार करा दें। लेकिन ये याद रखें कि दीदार मुस्तफा कोई आसान नहीं है। हाँ ये अल्लाह के हबीब है, हाँ मर कर तो फिर आसान हो जाएगा, जाहिर है फिर हर मोमिन मुसलमान देखेगा, और अल्लाह करे हम हुजूर को देखें तो हुजूर हमारे कहने से पहले ही कह दे जो आला हज़रत ने कहा है बंदा आजाद शुदा है हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है। हाँ बस वो हुजूर ही कह दें कि हमारा ही है तो सारा मसला ही हल हो जाएगा, और अल्लाह पाक हमें अपने महबूब की पहचान नसीब फरमाए। बात इधर कहीं मैं कर रहा था ये रसूलुल्लाह हैं, सुभान अल्लाह, इनको देखने वाला भी जन्नती है। हाँ अब कोई देख ले तो क्या समझते हैं वो जहन्नम में जाएगा, और हुजूर के सहाबा के बारे में कोई बदनसीब कहे तो अपनी आखिरत की फिक्र करे। आज ख्वाब में भी कोई रसूलुल्लाह को देख ले तो हदीस पाक ने जिसने मुझे एक मर्तबा ख्वाब में देखा जिंदगी में एक मर्तबा जागते मुझ मुस्तफा को जरूर देगा। और उलमा से मैंने सुना वो और मैंने बड़े बड़े सिका उलमा से सुना कि बंदे की अगर बर्दाश्त ना होगी ना तो फिर हुजूर उसे मरते वक्त दीदार कराएंगे ताकि किसी को जिक्र न कर। हाँ उधर मर रहा होगा उधर उसको हुजूर दीदार कराएंगे तो कितनी आसानी से मरेगा। जिसको हुजूर अपना जलवा दिखा दें तो जागते हुए देखेगा जरूर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह के हबीब हैं, हुजूर सैयद आलम है, बताइए इनका जिक्र क्यों न करें। कहते कहाँ लिखा हुआ है? वो एक मौलाना अभी मैंने सुना उसका यूट्यूब पर, वो एक मकतब फिक्र का बहुत बड़ा मुफ्ती आजम, तो वो कह रहा था जुम्मे का खुतबा अपलोड किया उन्होंने,
यूट्यूब पर, तो वो कह रहा था कि मुझसे दोस्त पूछ रहे हैं कि आप मिलाद क्यों नहीं मनाते। उन्होंने कहा इसलिए नहीं मनाते कि हुजूर के सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया और हम दीन में नया काम शुरू नहीं करना चाहते। बहुत आप नेक सालेहीन हैं दीन में, चलो जी हम जो कहते हैं ये तो दुनिया है। अब बताइए ये मस्जिद दीन है या दुनिया है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कैसी थी? हदीस पाक में मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद जो थी वो कच्ची थी, उसके ऊपर खजूर के तने थे, ऊपर खजूर की शाखें थी। जब कभी बारिश होती अल्लाह के महबूब नमाज पढ़ाते, हुजूर के सहाबा पीछे नमाज पढ़ते। फर्श मस्जिद कच्चा था और पानी ऊपर से टपकता रहता, फर्श मस्जिद गीला हो जाता। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के जब सजदे से सर उठाते तो वो पानी और मट्टी वो सारी उनके चेहरे और पेशानी पर और वो पानी टपक रहा होता। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को जीनत देने से मना फरमाया, जिसे पाक है कि मस्जिद को जीनत ना दो। लेकिन आप बताइए फिर मस्जिद भी तो वैसी बना लो ना जैसी रसूलुल्लाह की थी। हमें सिर्फ सबक है सुन्नतों पर अमल करने का, तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं है। बेटियों को 2-2 ट्रक जहेज में देने वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को जो जहेज दिया था 2 ना तुम भी। यहां भी तो सुन्नत को पूरा करो ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से आटा पीसने वाली एक चक्की दी, एक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की छाल भरा तकिया, एक खजूर की छाल भरा गद्दा, एक खजूर की बनी हुई चटाई, और अल्लाह के महबूब ने मिट्टी के चंद बर्तन अता फरमाए। तुम भी दो ना बेटी को। निकाह तो सुन्नत है, निकाह तो निस्फ ईमान है, इसका ताल्लुक तो दीन से है। यहां तो दीन पर अमल कर लो। हुजूर के किसी साहबी ने भी इस तरह फ्रिज और जनाब ये जो आप हम देते हैं अल्लाह के महबूब के किसी साहबी ने भी नहीं दी, तो तुमने ये कहां से देना चाहिए? हालात बदल गए जी, दौर बदल गया, अब ये करना पड़ता है जी, क्या करें जी। अजीब बात है, अगर तुम्हारी बेटी की शादी हो तो तुम्हारे लिए दौर बदल गया है, रसूलुल्लाह का जिक्र हो तो तुम्हारे लिए वही दौर है। हुजूर के सहाबा जी लंगर पकाते थे, हुजूर के सहाबा मिलाद मनाते थे। मसला इतना है, लंगर पकाना वो अपनी शान के लायक करते थे, हम अपनी उसके जिक्र पर करते हैं। अल्लाह के महबूब के सहाबा बेटों का वलीमा भी हाल में नहीं करते थे, मुरगन ग़िज़ाएं नहीं पकती थी, खीर और मीठा नहीं होता था, ये जनाब मुख्तलिफ अक़साम के खाने नहीं होते थे। हदीस पाक में है कि साहबी एक बकरी ज़िबा करते, जिसको ज्यादा तौफीक होती 2 ज़िबा कर लेता और तकसीम कर देते, वलीमा हो गया। तुम भी करो ना। बेटे के लिए लाइटिंग लगी हुई है, आप इसी गली में लोगों को देखेंगे जो आपसे और हमसे पूछते हैं कि हुजूर का मिलाद करते हो, कहां लिखा हुआ है? हम बेटे की शादी पर लाइटिंग हो, आप भी तो कभी पूछे ना ये कहां लिखा हुआ है? फिर कहेंगे जी बस ये रिवाज है। अजीब बात है, तुम्हारे बेटे की शादी हो तो खाना मुतनवा हो, अक़साम का हो, और रसूलुल्लाह का जिक्र हो तो मर जाओ। और हुजूर क्या फरमाते हैं? अल्लाह के हबीब तो फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी औलाद, हत्ता के में अपनी जान से भी ज्यादा मुझ मुस्तफा से मोहब्बत न करे। औलाद से इतनी मोहब्बत है किस्म किस्म के खाने, और रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत है पका क्यों रहे हो? कुछ तो शर्म करो। शादी इस दौर के मुताबिक हो और मिलाद उस दौर के मुताबिक हो। हुजूर के सहाबा ने नहीं किया, आप कहां पढ़ते रहे? यही तो मिलाद ही तो हुजूर का वस्फ है जिसका जिक्र हर सहाबी ने किया। हजरत हसन बिन साबित ने क्या कहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? अल्लाह के महबूब ने उनसे कहा, उनको मिंबर पर खड़ा किया, हुजूर खुद फर्द मस्जिद पर जलवागर हो गए और हसन से कहा हसन मेरी तारीफ करो। और हजरत हसन क्या कह रहे हैं? हजरत हसन कह रहे हैं वाह हसन मिनका लम तरकत तोइनु अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। ए प्यारे हबीब, आप जैसा खूबसूरत हसीन तो किसी आंख ने देखा ही नहीं है, और आप जैसा खूबसूरत तो किसी माँ ने जना ही नहीं है, किसी माँ के यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। पैदा होना और होता है, मिलाद और होता है। लम तालिदिन निसाउ क्या है और मिलाद क्या है? हुजूर के सहाबी कह रहे हैं सारे सहाबा नहीं होंगे, तब भी तो सहाबा मौजूद थे ना, उन्होंने दूसरों को भी बताया होगा। तो हुजूर के सहाबी हसन बिन साबित हुजूर के सामने कह रहे हैं अल्लाह के हबीब, आप जैसे हसीन किसी बच्चे का किसी माँ के यहाँ विलादत नहीं हुई। आपकी विलादत ऐसी पाकीज़ा मुनज़्ज़ा है कि किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं है। और मुफस्सरीन कहते हैं कि क्या है, याद रखें, हर एक बच्चा पैदा होता है, फिर वह असातिज़ा से सीखता है, फिर वो कुछ तरबियत पाता है, फिर जाकर कामिल बनता है। रसूलुल्लाह ने किसी से तरबियत नहीं ली, हुजूर कामिल अव्वल पैदा हुए। हसन कह रहे हैं आप जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। अल्लाह के हबीब किसी से नहीं पढ़े,
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سمجھتے ہیں حضور امی ہے، حضور کسی سے پڑھے نہیں ہے، لیکن حضور سب پڑھے ہوں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور حضور کے پڑھانے کا عالم یہ ہے، حضور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا رہے ہیں زبان سے ادا کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے محبوب ان کی خالہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں جس دن خالہ کے ہاں حضور ہیں اس دن آ جاتے ہیں، والد بھیجتے ہیں حضرت عباس کے جائیے عبداللہ اور جا کر دیکھیے رسول اللہ رات کیسے گزارتے ہیں، حضور تہجد کے لیے کیسے اٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام وضو کیسے کرتے ہیں، تاکہ میں بھی وہی طریقہ اختیار کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس عمر 9 یا 10 سال ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے، حضور کاشانہ اقدس میں آئے، ام المومنین نے بتایا حضور عبداللہ آئے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اور رات رہنا چاہتے ہیں، ان کا بستر میرے ساتھ لگا، حضور کے ساتھ بستر لگ گیا، اللہ کے حبیب آرام فرما ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو جاگ رہے ہیں اس انتظار میں کہ حضور اٹھیں تو میں بھی اٹھوں، دیکھو حضور کیسے رات گزارتے ہیں۔ اللہ کے حبیب رات کا جب اللہ کے محبوب بیدار ہوئے، حضور کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کھڑے ہو گئے، اللہ کے بچے ہیں لیکن والد نے اللہ کے محبوب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو لوٹا ام المؤمنین بھر کر رکھتی، حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے جلدی سے لوٹا پکڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیت الخلاء میں رکھا، حضور تشریف لائے، وضو کرایا، خود وضو کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے جو حضور نے ترتیب ہے اس کے مطابق تھوڑا پیچھے کھڑا کر دیا، حضور نے جو ہی نیت باندھی عبداللہ ابن عباس 2 قدم پیچھے ہو گئے، جیسے سب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر دست مبارک دراز کیا، دوران نماز پکڑ کر برابر میں کھڑا کر دیا، پھر حضور نے ہاتھ چھوڑا، یہ پھر 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ حدیث پاک میں متعدد مرتبہ ایسا ہوا حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے دوگانہ مکمل کر لیا، سلام پھیرا، عبداللہ ابن عباس سے کہا عبداللہ تجھے کیا ہو گیا، میں تجھے بار بار برابر کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، چچا زاد بھائی ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے آپ تو میرے بھائی ہیں، یہ بد نصیبوں کا رشتہ بھی کوئی نہیں، اور کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے بھائی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، اور کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب عباس کے بیٹے عبداللہ کی کیا مجال آپ کے برابر کھڑا ہو، اللہ کے حبیب میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا۔ بچے ہیں لیکن ادب کا عالم دیکھیں، حضور کو اتنا کرم سرکار نے سینے سے لگا دیا، حدیث پاک میں دعا کی جس کا مفہوم ہے اللہ عبداللہ ابن عباس کے سینے کو علوم قرآن سے بھر دے۔ حضور کو پڑھانا بھی نہیں پڑا، بس حضور نے سینے سے لگایا اور علوم قرآن سے سینے کو بھر دیا، اور پھر پھر کیا ہوا، حضور نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جس کو قرآن سیکھنا ہو عبداللہ ابن عباس سے سیکھے۔ تو یہ رسول اللہ ہیں، علم دینے پر آئیں تو کیفیت یہ ہے، حدیث مبارکہ میں 6 ملکوں میں آقا علیہ السلام نے سفیر بنا کر دعوت دینے کے لیے خط دے کر روانہ کیا، صحابہ کو خط عطا کیے، حضور نے نگاہ ڈالی وہ چلے گئے، اور سارے صبح اٹھے، جس کو حضور نے جس ملک کے لیے بھیجنا تھا صبح اٹھے تو اس ملک کی زبان کو پر بول رہے تھے، یعنی حضور کے خط کی برکت سے، حضور کی نگاہ سے انگریزی، وہ روم جا رہا ہے تو انگریزی بولنے لگ گیا، ایران جا رہا ہے تو فارسی زبان اس کو آنے لگ گئی، اور ان بدنصیب امتیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں دکان وغیرہ ایک پمفلٹ دے گیا، اس میں 10 سوال لکھے ہوئے تھے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ تم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہو، پنجابی میں کہتے ہو حضور ہم آئے ہیں، کوئی سرائکی میں کہتا ہے، کوئی پشتو میں، کوئی جناب بلوچی میں، کوئی سندھی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی عربی میں، کیا حضور ساری زبانیں جانتے ہیں؟ کتنا بد نصیب ہے رسول اللہ جس کو نگاہ دیکھیں اس کو زبانیں آ جائیں، ان کو یہ پتہ نہیں لگا خود رسول اللہ کو آتی ہے۔ اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب بتائیے اگر حضور زبانیں نہ جانے تو رحمت کیسے فرمائیں گے؟ اللہ کے حبیب ہی ہماری گزار کو نہ سمجھے، معاذ اللہ ہمارے منہ میں خاص، اگر رسول اللہ ہی ہماری التجا نہ سمجھے نہ سنے تو بتائیے پھر التجا سنے گا کون؟ اللہ نے تو رحمت محبوب کو بنا کر بھیجا ہے، پھر اور کون ہے جس سے رحمت حاصل کریں گے؟ اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ خود سے عطا تمہیں کر دے گا؟ نہیں، فرمایا اللہ موتی و انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، ہے سب کچھ اللہ کا، عطا اللہ کی ہے، لیکن حضور نے فرمایا عطا مجھے فرماتا ہے اور تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں میں مثال کے طور پر اللہ رسول کے ساتھ مثال نہیں دیتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سمجھ
ایک پشتو بولنے والا ڈاکٹر ہے, اردو بولنے والا, مریض آ گیا پشتو بولنے والا, اس کو کہیں سینے میں کسی جگہ تکلیف ہے, اب وہ پشتو میں بتا رہا ہے مجھے درد ہے, یہ فلاں تکلیف ہے. ڈاکٹر کو پشتو نہیں آتی, مریض کو اردو نہیں آتی. اب بتائیے وہ چاہتا بھی ہے کہ میں اس کا علاج کروں, اس پر رحمت کروں, لیکن وہ کہے گا یار کوئی بندہ لاؤ جو اس کی بات سمجھے, مجھے پتا چلے اسے تکلیف کیا ہے, میں دوا دوں, اس کی تکلیف دور کروں. ڈاکٹر بھی اگر زبان نہ جانتا ہو تو تکلیف دور نہیں کر پاتا. یہ تو رسول اللہ ہے جن کو حضور نے کیا فرمایا, میں صرف انسانوں کے لیے ہوں, نہیں فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, میں مصطفیٰ ساری مخلوق کے لیے کافی بن کر آیا. اور کس نے کافی بنایا؟ اللہ نے بنایا. کہتے ہیں حضور کی رسالت کافی ہے, ہم یہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ لکھ دیتے ہیں نا صرف اللہ ہی کافی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف اللہ ہی کافی ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے گئے؟ اللہ ہی کافی ہے, چندے مدرسے کے لوگوں سے مانگ رہے ہو. وہ جی مسجد بن رہی ہے, جی مدرسہ بن رہا ہے, اللہ کا گھر بن رہا ہے, یہ اللہ تمہیں براہ راست نہیں دیتا, سب کچھ باقی براہ راست دیتا ہے, چندہ کہتا لوگوں سے لے. یاد رکھیں جس طرح اللہ کا ماننا ضروری ہے, جو اللہ نے وسائل بنائے ہیں ان کا ماننا بھی ضروری ہے. بے ایمان ہے وہ جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کا انکار کرتا ہے. کہے میں کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے, کہے میں تو نہیں جڑواتا, وہ اللہ ہی جوڑے گا جی. اس کی ٹانگ گل جائے, پھر کہے جی اللہ نے تو جوڑی نہیں, اب ڈاکٹر سے آپریشن کراتا ہوں. پھر کہے جی اللہ نے نہیں جوڑی, ڈاکٹر نے جوڑی ہے, یہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. لیکن ڈاکٹر پلیٹیں ڈالتا ہے, وہ آپریشن کرتا ہے, جب گھر آتا ہے تندرست ہوتا ہے, کہتا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے شفا دے دی. ہاں یہ ڈاکٹر کا وسیلہ اس نے بنایا ہے. یہاں تمہیں یاد نہیں آتا کہ ڈائریکٹ مانگنا ہے؟ ہماری بات ہو تو ڈائریکٹ مانگتے ہو, جب تمہاری تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہو. ڈاکٹر اگر دوائی دے تو کوئی شرک نہیں ہے, اگر اللہ کا ولی دعا دے دے تو شرک ہو جاتا ہے. اللہ نے شفا عطا کرنی ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں رکھ دی, اندھوں کو دیکھا اور ساروں کو آنکھیں مل گئی, دستے مبارک پھیرا تو کوڑی تندرست ہو گیا. اور پھر کیا کہتے ہیں, آنا میں مردے زندہ کرتا ہوں. حضور آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں باذن اللہ, اللہ نے اجازت دے دی ہے. اب جس کو اللہ نے جتنی اجازت دی ہے یہ کہے میں نہیں مانتا, یہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے. یہ کہے میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے ہیں, کافر ہے, بے ایمان ہے, قرآن کا منکر ہے. تو پھر وہ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے امتی بن کر آنے والے ہیں. ابھی قریب زمانہ پہنچنے والا ہے, آپ تشریف لائیں گے, حضور کی امت پر حکومت کریں گے. امتی کی یہ کیفیت ہو, خود رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر, اندھے کو کیا نظر آئے, اس کو آپ کیا دکھا سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب ہیں, اس بدنصیب کو کوئی پتہ نہیں چلا. رسول اللہ ہماری زبان جانتے نہیں جانتے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک چڑیا حضور کی بارگاہ میں آ گئی, چوں چوں کرنے لگ گئی. حضور نے صحابی کو بلایا, فرمایا یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے کہ آپ اللہ کے حبیب, آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بچے نے ہمارے گھونسلے سے, میرے گھر سے میرے بچے نکال لیے. حضور ان کو حکم فرمائے واپس رکھیں. حضور نے فرمایا بچے لے کر واپس رکھو. چڑیا کو پتہ ہے حضور میری زبان جانتے ہیں, اس امتی کو پتہ نہیں کرتا, اس کو کوئی پتہ نہیں. رسول اللہ ہماری زبان جانتے نہیں جانتے. اور چڑیا جانتی ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے, حضور سے رحمت ملے گی, میرے بچے بچ جائیں گے. اس کو کوئی پتہ نہیں ہے حضور مدد کرتے ہیں نہیں کرتے. حدیث مبارکہ میں جب یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا, محدثین نے تو اس کو بڑی تفصیل سے نقل کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے کتنے جانور لائے گئے جو حضور کو جانتے تھے. حدیث مبارکہ میں ابن عساکر نے لکھا کہ ایک اونٹ حضور کے صحابہ گزر رہے ہیں, آقا علیہ السلام ساتھ ہیں, حضور کے ساتھ میت میں صحابہ بھی ہیں. ایک جگہ ایک اونٹ بفرا ہوا ہے, آقا علیہ السلام پہنچے, وہ اونٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے اپنی زبان میں بڑبڑانا شروع کر دیا. اونٹ کو پتہ لگ گیا رسول میری زبان جانتے ہیں, یہ انسانی اونٹ جو ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے حضور ہماری زبان جانتے ہیں. جانوروں کو خبر ہے کہ حضور ہماری زبان جانتے ہیں. جب اس کی بات ختم ہوئی, محدث ابن عساکر کہتے ہیں حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. مالک آیا, وہ یہودی تھا. فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ انہوں نے مجھ پر سامان لادا, بڑی مجھ سے مشقت کی, بہت محنت لی, اب میری عمر کچھ ڈلی ہے, تو یہ اب کہتے ہیں اس کو کاٹ لو, اس کو ذبح کر دو. تو اللہ کے حبیب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, مجھے آزادی عطا فرمائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے آزاد کر دو. اس نے کہا نہیں کروں گا. فرمایا اس کو بیچ دو. کہا بیچ دوں گا. جتنے پیسے اس نے مانگے. محدث ابن عساکر کہتے ہیں حضور کے صحابہ کہتے ہیں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے اپنی جیب خاص سے عطا فرمائی اور اونٹ کو فرمایا جا
तुझे मुस्तफा की अमान है, तू अपनी जिंदगी बता। मुहद्दिस कहते हैं, हुजूर के साहबा कहते हैं, इस वाकया के 40 साल बाद तक वो ऊंट जिंदा रहा, जंगलों में रहा, जंगल में बड़े बड़े दरिंदे थे, किसी दरिंदे ने भी कभी नुकसान नहीं दिया उसे, जंगल के दरिंदों को भी पता था रसूलुल्लाह की अमान में। इस जाहिल इंसानी को कोई पता नहीं है, इसको क्या कहें कि हुजूर अमान देते हैं कि नहीं देते। ऊंट को पता है, जानवरों को पता है कि हुजूर की बारगाह से अमान मिलती है, इसको कोई पता नहीं। इसको किताबें दिखाओ, किताब में लिखा हुआ, ऊंट ने किताबें पढ़ी हुई थी। ये इंसानी ऊंट है जो किताबें मांगता है, उस ऊंट को पता है रहमतुल लिल आलमीन है, किताबों की हाजत नहीं है। हाँ, मैं भी तो मखलूक हूँ, सारी मखलूक की तरफ आए हैं, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, हुजूर की रहमत मेरे लिए भी तो है। अल्लाह के हबीब ने उसे आजाद किया, वो चला गया। आगे इब्न असाकिर कमाल की बात लिखते हैं, मुहद्दिस कहते हैं कि ये ऊंट फिर ऐसा होता, आबादियों के रहने वाला था, कभी कभी आबादी में आ जाता, जब आबादी में आता ना तो आकर फिर फसल में घुस जाता। अब फसल में किसी की फसल में ऊंट घुस जाए और उसको उजाड़ने लगे तो शोर मच जाता, लोग दौड़ते, जो सबसे पहले पहुंचता वहीं से आवाज लगाता, कहता लोगों लौट जाओ, ये ऊंट वो है जो रसूलुल्लाह की अमान में है। और मालिक भी पहुंचता तो कहता लोगों हट जाओ, इसको उजाड़ा करने दो, इसे लताड़ने दो, इसे खाने दो, जो करता इसे करने दो, इसको अल्लाह के हबीब अमान देकर गए। अब फिर क्या होता, आगे बड़ी कमाल की बात लिखी मुहद्दिस ने हुजूर के साहबा की जुबानी, हदीस पाक में साहबा कहते हैं, मुहद्दिस कहते हैं, साहबा कहते हैं कि फिर वो जिस एकड़ को उजाड़ कर चला जाता वो तो चला जाता, दाने पके हैं उसने उजाड़ दिया है और जनाब घूमता रहा, मिसाल तौर एकड़ में चला गया। अब हदीस पाक के ये माना नहीं है, मफहूम बयान कर रहा हूं। मिसाल तौर ये एक एकड़ में 50 मन जौ निकले, बड़ा अच्छा एकड़ था, 50 मन की जनाब एवरेज आ गई। फिर मुहद्दिस कहते हैं कि हुजूर के साहबा कहते हैं जब उसका उजाड़ा हुआ एकड़ तुलता तो इससे दोगुना हो जाता। तो फिर हुजूर के साहबा ये ख्वाहिश करते हैं, काश आखिर इस्लाम ने जिस ऊंट को अमान दी है कभी हमारे भी फसल में आ जाए। अल्लाह जिस ऊंट को हुजूर अमान दे उसकी बरकत इतनी है फसल दुगनी हो जाए, ये हुजूर के अमान में बरकत है, खुद रसूलुल्लाह की बरकतों का आलम क्या हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कोई पता नहीं है हुजूर के पास इख्तियार है कि नहीं है। हम कहते हैं हुजूर मुख्तार कुल है, मुख्तार कुल तो अल्लाह ताला है। जाहिलो, मुख्तार कुल का माना ये नहीं है कि अल्लाह के मुकाबले में कुल है, ये जो कुल का लफ्ज है ये मखलूक के मुकाबले में है। माना ये है कि आदम से लेकर कयामत के आखिरी फर तक सारे इंसानों को अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया है उन सबके कुल से भी हुजूर का इख्तियार ज्यादा है। याद रखें, जब हम मुख्तार कुल कहते हैं तो निस्बत मखलूक की तरफ होती है। हम कहते हैं हुजूर को इल्म कुल है तो अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं है। आला हज़रत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दौलतुल मतिया में लिखा कि कतरे के करोड़वें हिस्से को जो निस्बत समंदर से है, हुजूर के इल्म को वो निस्बत भी अल्लाह के इल्म से नहीं है। इसलिए कि अल्लाह खालिक है, हुजूर मखलूक है। अल्लाह का इल्म ला महदूद है, हुजूर का इल्म अल्लाह के मुकाबले में महदूद है। अल्लाह का इल्म अल्लाह का अपना है, हुजूर का इल्म अल्लाह का अता करदा है। लेकिन उन्होंने लिखा बाकी अल्लाह के अलावा सारी मखलूक का इल्म एक कतरा है, हुजूर का इल्म समुंदर है। तो जब हम कहते हैं हुजूर को कुल इल्म है तो मुराद ये होती है कि मखलूक का कुल है। ये अगर शिर्क होता तो कुरान क्यों कहता वह अल्लामा आदम अल अस्माअ कुल्लाहा, क्या मतलब है अल्लाह के मुकाबले में कुल इल्म है? नहीं, फरिश्तों के मुकाबले में कुल है। सारे फरिश्तों के इल्म से भी आदम का अस्मा का इल्म ज्यादा था, लिहाजा यहाँ लफ्ज कुल की निस्बत फरिश्तों की तरफ है। तो यहां भी जब हम कहते हैं हुजूर को कुल इल्म है तो माना यह होता है मखलूक का कुल है। अल्लाह का कुल तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह तो मालिक है। और फिर कहते हैं हुजूर की तारीफ करते हैं, हद से बढ़ा देते हैं। हद क्या है वो अल्लामा बुसीरी ने नकल फरमा दी। खबरदार वो न कहना हुजूर के लिए जो नसारा ने अपने नबियों के लिए कहा। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह के बेटे हैं। हुजूर ना अल्लाह के बेटे हैं, ना अल्लाह का जुज़ है, ना अल्लाह का टुकड़ा है, ना अल्लाह का हिस्सा है। इसके अलावा जो दिल में आता है वाह तुम बिमा शिता भी वाहता के भी, और जो दिल करे हुजूर की तारीफ करते रहो, हुजूर उससे भी बढ़कर। याद रखें हुजूर अल्लाह के अब्द खास हैं, अल्लाह के बंदा खास हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लम अल्लाह के जलवों का महवर मरकज है। अल्लाह के जलवे हुजूर के रूह ज़ेबा में चमकते हैं। लेकिन अल्लाह खालिक है, हुजूर अल्लाह की मखलूक है, अब्द मुबारक हैं। लेकिन ये जान लें हुजूर भी एक हैं, अल्लाह की पूरी मखलूक में हुजूर का शरीक नहीं है। हाँ, जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर ने पूछा ना तो जो जिब्रील ने जवाब दिया आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी ने उसको शेर बंद किया
फरमाया जब सिदरा के मकी से हुजूर ने पूछा सारे अजीम तुमने देखे हैं सारे नबी, बताओ सबसे ज्यादा उस अल्लाह ने नबियों को अता किया, मेरे बारे में क्या कहते हो? तो आला हज़रत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया तुझे यक ने यक बना। वो वादहू ला शरीक है, खालिक है, लेकिन अल्लाह की पूरी मखलूक में हुजूर का कोई शरीक नहीं। हुजूर ला शरीक है अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह तो खालिक है, वो तो ला शरीक है। अल्लाह की पूरी मखलूक में मुस्तफा जैसा कोई नहीं है। हुजूर क्या है ये कहना कि जी हुजूर तो माज अल्लाह दीवार पीछे नहीं जानते, अगर दीवार पीछे हुजूर को पता नहीं है तो रहमत कैसे फरमाएंगे? मानना पड़ेगा सारे आलमीन के लिए हुजूर रहमत है, तो सबको जानते भी तो हैं, सबकी तकलीफों को भी जानते हैं। और इंसान के लिए तो अल्लाह ने फरमा दिया मोमिन मुसलमान के लिए कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मफ़हूमी माना अलबत्ता तहक़ीक़, हमने अपने रसूल मज़लूम को तुम्हारे अनफुस में भेजा है, लेकिन तुम जैसा बनाकर नहीं भेजा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तो इस तरह भेजा है कि जैसे तुम पर तकलीफ आती है महबूब जान लेते हैं। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि हुजूर हमारे अनफुस में इसीलिए आए हैं कि हुजूर हमारी तकलीफों को आसान तरीके से जान। हाँ, और फिर अल्लाह क्या फरमाता है? हरीसन अलैकुम, मेरे हबीब तुम पर हरीस हैं, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के लिए तो मुस्तफा रऊफ भी हैं रहीम भी हैं। अब बताइए अल्लाह भी रऊफुर रहीम हो, हुजूर भी रऊफुर रहीम हो, शिर्क होता है कि नहीं होता? कहते हैं अल्लाह की सख्त बंदे में अल्लाह फरमा रहा है महबूब रऊफुर रहीम है, तो माना यह है अल्लाह रऊफुर रहीम है अपनी ताकत से, मोमिनों के लिए रऊफुर रहीम बनाया अल्लाह ने महबूब को अपने करम से। अब बताइए एक मनहूस ने कहा जी अल्लाह की सख्त बंदे में माने तो शिर्क होता है। मैंने आयत पढ़ी, उसके मुंह से निकला नाम भी उसका अहमद यार था। बदनसीब का नाम माँ बाप ने कैसा खूबसूरत रखा, खुद पता नहीं को क्या हो गया। तो वो कहने लगा है ये आयतें लोगों को ना सुनाया करो, इससे लोगों का ईमान खराब होता है। बेईमान कुरान तो हुजूर की तारीफ कुरान में बर्दाश्त नहीं है, और दावा यह है मैं हुजूर का उम्मती हूं। मैं तो अभी कहता हूं कि आप देखें दुनिया में जो लीडर है हमारे इमरान खान, नवाज शरीफ, भुट्टो, बेनजीर, इमरान की तारीफ हो रही हो, इमरान खान का वर्कर नाराज होगा? कहेगा कहां लिखा हुआ है? मैं अगले दिन पढ़ा तो एक ने कहा ये खान को फला बंदा मिलने गया, 20 साल से शादी हुई थी, जेल में मिला, औलाद नहीं थी, खान ने सर पर हाथ रखा, अल्लाह ने बेटा दे दिया। बताओ किसी ने कहा कि ये कहां है, कहां लिखा हुआ है? कहां नहीं, कोई नहीं, सारे चुप हैं। और किसी ने सबूत भी नहीं मांगा, किस किताब में, ये भी नहीं पूछा। भुट्टो की तारीफ हो कोई पूछता है किस किताब में लिखी हुई है? नवाज शरीफ वो कहते हैं जी रंगे ही सारा मुल्क ने। अजीब बात है, इमरान की तारीफ हो वर्कर खुश हो, नवाज शरीफ की तारीफ हो उसका वर्कर खुश हो, भुट्टो की तारीफ हो उसका वर्कर खुश हो, रसूलुल्लाह की तारीफ हो और उम्मती का मुंह बिगड़ जाए। ये उम्मती है, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो हया कर। इसी को आला हज़रत ने कहा है जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यहाँ रहे, फिर कहे मर्दक के हूं मैं उम्मत रसूलुल्लाह की। ये उम्मती है। तो मैंने आयत पढ़ी, उसका मुख्तसर तर्जुमा ही अर्ज कर लूं, वक्त भी काफी हो गया। अल्लाह पाक ने आयत में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमाया हमने महबूब को तुम्हारे अनफुस में भेजा है, तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ना भेजता, उसकी मर्जी थी, ये उसका करम है, हमारे अनफुस में भेज दिया, लेकिन हम जैसा बनाकर नहीं भेजा। रब फरमा रहा है महबूब क्या आए हैं, क्या बन मिन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, मेरे हबीब इन पर आयतें तिलावत फरमाते हैं, रब की आयतें सिखाते हैं, व युज़क्कीहिम और इन्हें पाक करते हैं। बताइए जिसको इल्म ही ना हो कि कौन किसका दिल कैसा है वो पाक कर सकता है? हुजूर तो ये मनसब लेकर आए। अगर मुफ्ती मौलवी साहब तशरीफ लाए, बड़ी खूबसूरत बात की कि यहाँ चोर पकड़ा जाए ना, वो कहता है जी मुझे तो शैतान ने गुमराह कर दिया। फिर उसको कोई चोर पकड़ा जाए जनाब लाहौर में, कहता है शैतान जी मुझ पर छा गया था। कोई बेहयाई में पकड़ा जाए तो जी शैतान ने गलबा पा लिया। ये जो शैतान जो है पश्तून को गुमराह कर रहा है, अरबी जुबान में वसवसा डालता है उसके दिल में। ये जो अंग्रेज को गुमराह करता है उसको पश्तो में वसवसा डालता है। ये जो पंजाबी उर्दू बोलने वाले को गुमराह करता है शैतान, उस पर हावी होता है। ये वो जो पंजाबी बोलने वाला है इसको फ्रांसीसी जुबान में जो है वो वसवसा डालता है। शैतान एक है और ये इसको मानते हैं कि हर इंसान के दिल में वसवसा डालता है। शैतान सारी जुबानें जानता है। बदनसीब शैतानियत कोई मनसब है?
शैतान का कोई दर्जा है? जिसने मोहलत मांगी अल्लाह ने मोहलत दी, वो हर इंसान के दिल तक काबू पाए। और रसूलुल्लाह जिनको अल्लाह ने वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, जो हिदायत का मनसब लेकर आए हैं अल्लाह के हबीब, वो कुछ नहीं कर सकते। इस बदनसीब को कुछ तो हया करना चाहिए, कुछ तो शर्म कर। शैतान को तू भी मौलवी भी पकड़ा जाए तो कहता है शैतान जी। ऐसे कई हैं, तो यूट्यूब पर आप देखें वीडियो कई आई होती है, कई कारनामों में पकड़े जाते हैं, बस जी शैतान ने मुझ पर गलबा कर लिया था। शैतान ने जो तुझ पर गलबा किया, तुझे अरबी जुबान में कहा था ये शैतानियत का काम कर। शैतान के बारे में तू समझता है, हर एक की जुबान जानता है। कितना बदनसीब है जो तुझे गुमराह करता है उसको मानता है, और जो तुझे हिदायत दे रहे हैं उनके मानने से महरूम है। फिर बता तुझे हिदायत कैसे मिलेगी? हिदायत तो है ही रसूलुल्लाह से बता। अल्लाह फरमाता है ये ज़क्कीहिम, ये पाक करते हैं। इसलिए फरमाया हुजूर का पहुंच, हुजूर की पहुंच हर मोमिन के दिल तक। हाँ, और इसको अन्नबी औला बिल मोमिन मिन अनफुसिहिम के तहत बानी दारुल देवबंद, उनके सबसे बड़े मौलाना जिन्होंने मदरसा बनाया था देवबंद, कासिम नरोजी, उन्होंने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में लिखा अन्नबी औला। तो उन्होंने कहा औला बमानी अकरब, माना ये हुआ अन्नबी औला बिल मोमिना मिन अनफुसिहिम के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ने कहा अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारी तकलीफ तुम पर आती है, महबूब बेकरार हो जाते हैं। हुजूर इतना करीब है, मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। जान को भी पता बाद में लगता है, मुस्तफा पहले जान दे। तो रब ने कहा हरीसन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ रहीम, फरमाया रत्तीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये तो पाक करते हैं, हुजूर तो सबको पाक करते हैं। आगे फिर हज़रत मुफ्ती मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह साहब किबला के भी उस्ताद थे, वो फरमाया करते थे, ये मिसाल अक्सर देते कि बारिश रहमत है, बरसती है ना, तो ये जो आपका नहर का किनारा है यहाँ भी सारा कब्जा हो जाता है। वो जो चोलिस्तान से गायें लेकर यहाँ आते हैं ना, जब बारिश होती है वो कहते हैं हमारा तो चोलिस्तान भी मरी बना हुआ है, बड़ा जी काफ हो गया, बस अब यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही बारिश रहमत अल्लाह की रूढ़ी पर बरसती है, और फिर ऐसी बदबू उठती है जो उसका जाता है यूं कपड़ा रख कर जा रहा होता है। क्यों? वो रहमत यहाँ नहीं बरसी है। फिर क्या हुआ? बदबू क्यों आ रही है? जमीन गंदी है। ये जो इसके मुंह से बदबू निकलती है, इसका दिल गंदा है। अगर दिल पाकीज़ा होता तो रसूलुल्लाह भी यहाँ जलवागर होते, फिर हुजूर की मोहब्बत से दिल रोशन हो जाता। ये दिल गंदा है, अगर दिल को अच्छा कर ले तो रसूलुल्लाह की जलवागरी हो जाए। हुजूर तो आई पाक करने के लिए, पर बदनसीब पाक होने को तैयार भी तो हो ना। अगर इसके दिल पर मोहर लगी हो तो फिर इसको कौन छुड़ा सकता है? याद रखें अल्लाह के हबीब वो हैं, दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी रसूलुल्लाह नहीं छुड़ाना। और वो आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि ये 1 2 4 नहीं होंगे, लाखों होंगे, और मुजरिम उस दिन पकड़े जा रहे होंगे, और हुजूर का दामाने रहमत ऐसा होगा, उम्मती दौड़ दौड़ कर गुनाहगार छुप रहे होंगे, और वो हर पारे यानी फरिश्ते तलाश कर रहे होंगे, मिलने में नहीं आ रहे होंगे। मौलाना हसन रजा आला हज़रत के छोटे भाई लिखते हैं ना कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले मेरे आका जो तेरे दामन में छुपा हुआ। फिर जब अल्लाह के कहरो जलाल पर रब की रहमत गालिब आएगी, फिर हुजूर दामन करम उठाएंगे तो उम्मतियों के टट लग जाएंगे। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हदीस पाक के बड़े बड़े कबायर गुनाह वाले होंगे, मैं मुस्तफा सिफारिश करूंगा अल्लाह पर। सुभान अल्लाह। तो जो आज नहीं मानता वो उस वक्त उसको क्या मिलेगा? उस वक्त तो फिर हुजूर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मानने का वक्त तो अब है। वहां आखिरत में तो हज का माना काम आएगा। और आला हज़रत इसी शेर पर फिर के आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर का जलवा जब उस दिन देखेंगे हर कोई मानेगा, लेकिन हुजूर तभी मानेंगे जब आज उनको मान लें, फिर कल हुजूर भी मान जाएंगे, अल्लाह के हबीब हैं। और फिर आज हमने पहले आप उलमा तो शाह साहब किबला को अल्लाह ने इनको बहुत मलका दिया है गुफ्तगू का। याद रखें मैं हूं कोई और है, जो भी हुजूर का जिक्र करते हैं इसलिए नहीं कि हुजूर का जिक्र ऊंचा कर दे, इसलिए करते हैं हुजूर का जिक्र करेंगे हमें भी इज्जत मिल जाएगी। और इस शेर पर बात को खत्म करेंगे। हसन बिन साबित ने हुजूर से कही थी कि मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। मफ़हूमी माना अल्लाह के हबीब मैं जो आपकी मदह में कलाम कहता हूँ इसलिए नहीं कि मेरे कलाम से आपका मकाम ऊंचा हो जाता है, नहीं, आपका मकाम तो अल्लाह ने ऊंचा कर दिया। वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी, मैं तो इसलिए आपके मदह में कलाम कहता हूँ कि कलाम जो आपकी मदह में होगा तो मेरे कलाम को भी मकाम मिल जाएगा।